Yes, listen here. We have a circle. In this circle, this is the center O. If we draw two radiuses, this part is called sector of a circle. Sector is the part of a circle. सेक्टर जो है एक पार्ट होता है सर्कल का जो दो रेडियस से बना हुआ होता है. इट इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल. एंड दिस एंगल वी से दिस इज थीटा. दिस एंगल इज कॉल्ड sector angle. And whatever radius of the circle, this is the radius of the sector also. And one thing, this AB arc length, this is called length of the arc of a sector. तो सेक्टर की लेंथ है दैट इज एल. दिस इज ऑल थिंग्स, दिस इज गिवन. एंड दिस होल इज कॉल्ड, इफ आई विल टेक दिस वन, दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर. और ये जो होता है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर. प्लीज नोट डाउन दीज टर्म्स. First, you note down these terms. This is a sector angle. दो रेडियस आप खींचेंगे तो एक सेक्टर बनेगा. And this circle is divided into two parts. The one part is called minor sector, another is major sector. और ये जो होता है सेक्टर एंगल होता है, ये लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेक्टर होती है एल. और ये पूरा का पूरा इस टाइप में. आप प्लीज नोट डाउन दिस फिगर. इस फिगर को जरूर नोट डाउन करिए. इस फिगर को बनाइए. नोटेड सर. नो सर, एक मिनट. Noted, sir. These two radiuses divide the circle into two parts. The one, each part is called sector. One is the smaller one, that is called minor sector. The bigger one is major sector. Please note down these all. ये सब चीजें आप पहले इसमें यू कैन नोट डाउन दिस. वेरी सिंपल इट इज. I am going to rub. Everyone have noted this one? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, I am making another circle. Please make the figure. O is the center. There is two radius I will draw. This OAB is the minor sector I am taking. And this is theta, sector angle. And this is the length of the sector. L. Length of the arc of a sector. Listen carefully, all of you. Tell me, I am asking one question from you people. If the sector angle is 360 degree, then L कितना होगा बेटा? Tell me. अगर ये एंगल 360 डिग्री है और ये रेडियस है R, सेक्टर रेडियस ऑल्सो, सर्कल रेडियस ऑल्सो, ये सेक्टर रेडियस. अगर ये सेक्टर एंगल 360 डिग्री का होगा तो मेरे को बताओ लेंथ ऑफ द सेक्टर कितनी होगी? L. सर्कमफेरेंस. Circumference of the circle.
How much? How much? How much? 2 pi r. 2 pi r. 2 pi r. 2 pi r. Or if sector angle is 1 degree, then length will be equal to 2 pi r upon 360. Am I right? अगर सेक्टर एंगल 1 डिग्री का होगा तो ये होगी, और अगर सेक्टर एंगल थीटा डिग्री का होगा तो ये इंटू थीटा। अगर सेक्टर एंगल थीटा डिग्री का होगा तो ये इंटू थीटा आप लगा दीजिए, एंड दिस विल बिकम 180। so length of the arc of the sector is very simple, pi r theta upon 180. This is a formula for finding out the length of the arc of a sector L. Manvi Jain, have you joined? हाँ बोलो साहब ना। यस सर, अगर क्वीटा एंगल 360 डिग्री है तो लेंथ तो नहीं निकल रही है, लेकिन फिर अगर 1 डिग्री है तो कैसे निकाली आपने ये? अरे यार कोई चीज, ये तो यूनिटरी मेथड यू डोंट नो भाई। कम हो जाएगी ना, 1 डिग्री होगी तो लेंथ कम हो जाएगी ना, 2 पाई आर अपॉन 360। अगर 1 डिग्री, हमको यूनिटरी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते अपन। 7th स्टैंडर्ड में किया है, 6th में किया है, 8th में किया है। अगर कोई चीज ये है तो इतना 1 है तो कितना होगा, दिस अपॉन दिस। राइट सर? साधना, it is only a unitary method I am doing. So the length of the arc of the sector is pi r theta upon 180. This is one formula for finding out this length. अगर आपको रेडियस सेक्टर का मालूम है, थीटा मालूम है, तो आप लेंथ निकाल सकते हैं। Alisha, understood or not? Yes, sir. Some participant left the meeting. Who is this one? Who is left the meeting? मेरे को ये सबसे बुरा लगता है, कोई बच्चा अगर क्लास के बीच में जाता है तो। See here. Now I am asking one more thing. Sadhana, I will ask from you only. If sector angle 360 degree है, what is the area of the sector? अगर सेक्टर एंगल 360 डिग्री है, what will be the area of the sector? साधना, अगर 360 सेक्टर एंगल है तो सेक्टर का एरिया कितना होगा बेटा? साधना, आर यू इन द क्लास? साधना, I think she left the class. Manvi Jain, if sector angle 360 degree, Yes, what sir. will be the area? What will be the area? एरिया कितना होगा मानवी? यस सर। Once comma left the meeting. बोलो मानवी जैन। सर नहीं आ रहा। What I am asking, Vinisha, you understood or not? Yes, sir. अगर ये सेक्टर एंगल 360 डिग्री का बन जाए तो उस सेक्टर का एरिया कितना होगा विनीशा? Pi r square. भाई Area अब पूरा सर्कल बन जाएगा ना। Yes, sir. भाई गजब है यार। द एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। और अगर 1 डिग्री है तो क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर Pi r अपॉन square upon 360. 360। और अगर थीटा डिग्री है तो कितना बनेगा? इंटू थीटा। यूनिटरी मेथड यू नो। So can you tell what will be the area of sector?
pi r square theta upon 360. This is a very great formula for finding out the area of the sector. If you know radius, you can find out the area. Pi r square theta upon 360. Pragya, understood or not? Pragya. This is the area of the sector. This is length of the sector. These are the two formulas. You understood these? You have noted these? Yes, sir. आपने note Yes, किया? sir. Yes, sir. Now you see. I am doing one more thing. What is the area of the sector? Tell me. Pi r square theta upon 360. 360. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I can write this area like this. Pi r theta. एक r मैंने बाहर लिख लिया. R square है r. 180 up into 2. 360 को मैंने लिख दिया 180 into 2. एरिया लिखा है. That is pi r square theta upon 360. बट मैंने थोड़ा इसको डिफरेंट वे में लिख दी. Pi r theta upon 180 और r upon 2. What will be the area? This is what? Length of the arc of the sector. L r upon pi r theta upon 180 is what? Length into radius by 2. So this is the relation between area of the sector and length of the arc of the sector. The A is equal to pi, LR upon 2. Sadhana came or not? साधना उसका ऑटोफोन जानते हो आप लोग कोई? ऑटोफोन जानते हो साधना? Yes, sir. प्रगति एक बार ऑटोफोन करके पूछो क्यों नहीं आ रही हो? Yes, sir. एक मिनट. Why you miss the class? और फिर मेरे को बताओ. Please note down these three formula I have done. One, length of the sector, length of the arc of a sector. Second, I have done area of the sector. And third, I have done relation between area and the length of the arc. Very good formulas these. Please note down these. ये सारे फार्मूले नोट डाउन करो जो कि हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे. ओके बेटा, रबिट रबिट Yes, sir. सर यस सर साधना बोल रही है उसके नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ज्वाइन नहीं हो पा रहा. Now, very important topic I am going to do. Please listen it carefully. If you are not understanding, please tell me. Sir, हमें ये समझ में नहीं आया. But this is very important topic. Please listen it carefully. I am making a circle. Please make the figure with me. O is the center of the circle. I draw a chord. Please draw the chord.
This chord divides the circle into two parts. What is each part called? Anyone tell? सर मेजर Chord. सेगमेंट और माइनर सेगमेंट. Yeah, each part is called segment of a circle. और जो छोटी वाली होती है उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट. दिस वन, दिस इज द माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट. And this total, this one, this is the major segment. This is minor segment, this is major segment. Chord of a circle divides the circle into two parts. The smaller part is called minor segment and the bigger part is called major segment. All of you understood this one? यस सर. This Yes, sir. is Ipsita? Yes, sir. Yes. Now I want to find out the area of this minor segment. मैं इस एरिया निकालना चाहता हूं इस माइनर सेगमेंट. How I will find out the area? Anyone can tell? See, if I join OA and OB, this OAB will become a what? Sector? यस सर. And this angle is called theta. This is sector angle. I say it is a theta. Please, you can tell me what is the area of the segment, minor segment. Ipsita, Yes, sir. what is the area of this minor segment? मैंने ये शेड किया हुआ है. Tell me. Pragati, how you will find out Yes. the area of this minor segment? सर Manali, मैं बताऊं. यस सर. how you will find out the area of this minor segment? सर एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. Very good. Area of minor segment, it is equal to area of sector, जो ये OAB सेक्टर बना, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. ये ट्राइंगल OAB का एरिया. इससे हम ये तो फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर. तो बहुत इजी है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. एम आई राइट? यस सर. But how you will find out this area of triangle? How you will find out this area of triangle? Tell me. How you will find out this area of triangle? OAB. सेक्टर का तो एरिया निकाल लोगे आप, बट इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल? और ये हरदम क्या बनेगी बेटे? आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी. मानवी, ये हरदम आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. तो इट बिकम्स ए आइसोसेलेस. राइट? जैस्मिन खान left the meeting. Once Pawar also left the meeting, Jasmine Khan left the meeting. Tell me how you will find out the area of triangle. Melvin. Melvin? Anywhere Melvin Mitchell is there? He is in the class. Melvin is in the class. Ipsita, Sir, how you root will 3. find out the area of this triangle OAB? Sir, root 3 by 4 a square.
बट ये तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, अगर ये इक्विलेटरल बनती है तो हम निकाल सकते हैं √3/4 ए स्क्वायर। राइट एंगल अगर ये बनेगी तब भी हम निकाल सकते हैं। सर यूक्लिड फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना? किससे? यूक्लिड फॉर्मूला, यूक्लिड? जब ट्रायंगल वाला होता है ना, साइड मतलब पेरीमीटर और हीरोन्स फार्मूला? यस सर, हीरोन्स फार्मूला। बट हीरोन्स फार्मूला में तीनों साइड चाहिए बेटा। We know only these two are radiuses, but we don't know AB how much. I don't know. कितनी कोण है? सर इसमें मतलब AB के मतलब लाइन AB पे OD परपेंडिकुलर डाल देंगे तो उसके बाद वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो उससे सॉल्व हो जाए। मतलब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एम आई राइट? हाँ ये सर। सर और बेस इसका क्या होगा? जो कोण होगा AB, और ये हम यहाँ से परपेंडिकुलर होते हैं OM। OM इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। बट ध्यान रहे, अगर मैं इस O से OM परपेंडिकुलर डालता हूं AB पे, तो ये जो M होगा ये मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा किसका? AB का। If you Yes, draw a sir. perpendicular from the center of the circle to the chord, it bisects the chord. We know that. यस सर। तो ये जो M है ये मिड पॉइंट है किसका? AB का। मतलब जो AM है वो हाफ ऑफ AB है। राइट सर? यस सर। और यस एक सर। बात मेरे को और बताइए, अगर ये पूरा एंगल थीटा है ये, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इधर भी आर इधर भी आर, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल से जब हम जहां से दो साइड इक्वल है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो, एंगल बाइसेक्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो सब सेम होते हैं। केवल यहां से जहां से ट्रायंगल दोनों इक्वल साइड मिल रही है उस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे या कुछ भी डालेंगे, एंगल बाइसेक्टर होगा, वो भी सेम होगा। तो ये परपेंडिकुलर जो डल रहा है ये इस थीटा को भी बाइसेक्ट करेगा। क्या बेटा? ये परपेंडिकुलर थीटा को भी बाइसेक्ट करेगा। हाँ, दिस एंगल इज ये स्मॉल एंगल है, ये θ/2 होगा। ये जो एंगल है ना ये होल एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? θ/2। इप्सिता अंडरस्टूड? सर θ/2 एंगल ए और बी के भी इक्वल होगा क्या? हाँ, ए और बी का जो OM है ना, AOM, ये θ/2 होगा। यस सर। समझ गए ना? पूरा एंगल थीटा है तो ये क्या है? एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए। अंडरस्टूड? यस सर। समझ में आया? अब मेरे को एक बात बता दो, ये है आर। आर हमें मालूम है रेडियस ऑफ द सर्कल है या रेडियस ऑफ द सेक्टर है। राइट सर? मेरे को ये OM जो है, OM ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप OM बताओ कितना होगा? प्रगति? और एंगल ये लेना है θ/2, ये एक्यूट एंगल है। कैन यू टेल मी, हमें OM निकालना है, OM/OA, OM/OA, अगर मैं ये θ/2 लेता हूं, ये एक्यूट एंगल लेता हूं, तो OM/OA कितना होगा? टेल मी OM/OA कितना होगा? अभी तो ट्रिग्नोमेट्री करा के चुका हूं। सर cos θ/2। cos θ/2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। राइट सर? बेस अपॉन Yes, sir. हाइपोटेन्यूज क्या होगा? cos θ/2। और OA क्या है बेटा? रेडियस है, तो OM क्या होगा? R cos θ/,
Height of the triangle is r cos theta upon 2. Right, sir? यस सर, समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, ऐसे ही मेरे को am निकाल के बताओ। व्हाट इज am अपॉन OA? मैं OA लूंगा, क्यों? OA मेरे को मालूम है, R में ही निकालूंगा मैं वो। am अपॉन R क्या होगा? साइन थीटा अपॉन 2। साइन थीटा अपॉन 2। किसने बोला ये? हु टोल्ड? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा अपॉन 2. So what is am? Can you tell? R sin theta. Right, sir? इस OA को उधर ले ले। OA is R. R sin theta अपॉन 2. Or I can write 2am equal to 2R sin theta upon 2. Can I write like this? 2 to multiply कर दे सब दोनों जगह। यस सर। What is 2am? r sin theta अपॉन 2। 2am. AB 2r sin theta। AB। वो तो ठीक है, 2R sin theta upon 2 है। इसमें देखो अच्छा, am का AB डबल कितना होगा? AB। AB. AB is equal to 2R sin theta upon. Right, sir? यस सर। यस सर। AB is 2R sin theta upon 2. Right? ये बेस भी मैंने R की फॉर्म में निकाल लिया, थीटा की फॉर्म में निकाला, और हाइट भी आई हैव फाइंड इट आउट इन द फॉर्म ऑफ R और थीटा। थीटा की फॉर्म में ही हाइट निकाली। All of you understood this one? यहां Yes, तक sir. सबको समझ में आया? yes sir इप्सिता? yes sir Okay. Listen now. Now you tell me, what is the area of triangle AOB? अब मेरे को बताओ एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब हाफ इंटू AB इंटू OM। यही Yes, होगा sir. ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट सर? yes sir यस सर। सर। मैं इसको हाफ इंटू AB की जगह AB की वैल्यू रखता हूं 2R sin थीटा अपॉन 2, और OM की जगह R cos थीटा थीटा अपॉन R cos थीटा। राइट सर? यस अरे सर। कोई चीज करी नहीं ना मैंने। ये 2 कैंसिल होगा। दिस विल बिकम R स्क्वायर sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा। This is the very important formula for finding out the area of triangle OAB. अगर वो इक्विलेटरल नहीं बन रही है, अगर वो राइट एंगल नहीं बन रही है, तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला, रेडियस आपको मालूम है, थीटा मालूम है, तो प्लीज अप्लाई दिस फार्मूला। R स्क्वायर sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 will be the area of the triangle. Sir, what is the formula? Can you repeat? हैं? What, कुशाग्र? Sir, can you repeat the formula? R square sin theta upon 2 into cos theta upon 2. If you know the value of R, R उसमें दिया होगा रेडियस, थीटा उसमें दिया होगा सेक्टर एंगल, आप डायरेक्टली OAB ट्राइंगल का एरिया की बात कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। R square sin theta by 2 cos theta by 2.
All of you understood this one? यस सर। यस सर। ये फार्मूला आप मतलब कि अगर देखो, अगर ये OAB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वहां तो वी कैन अप्लाई ये फार्मूला √3/4a²। और अगर ये राइट एंगल बनती है, थीटा एंगल 90 डिग्री का दे रखा है, तो हम राइट एंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे। बट दोनों चीज अगर नहीं दे रखी है तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे? वहां तो हमें कोई ना कोई फार्मूला तो डेवलप करना पड़ेगा ना बेटा। यस सर। I have developed this formula r² sin theta by 2 cos theta. All of you understood? Manali? यस सर। हाँ बेटा बोलो। नो सर, कुछ नहीं, समझ आ गया। Okay. Okay. I am telling you a formula of trigonometry 11th में आप पढ़ोगे sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta। इंटू कॉस। ये 11th में आप पढ़ोगे sin 2 थीटा जो होता है हर्षिल, sin 2 थीटा is equal to 2 sin theta cos theta। This is a formula for 11th standard। राइट सर? मनाली एक फार्मूला होता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। यस सर। राइट? यस सर। अब ये देखो, अगर मैं इस एंगल को थीटा ना मान के θ/2 मानू, व्हाट? θ/2 एक्स। तो ये फार्मूला क्या होगा? 2 sin θ/2 इंटू कोस θ/2 क्या होगा? यहाँ क्या होगा? sin 2 थीटा 2 इंटू θ/2। अगर मैं इस एंगल को थीटा ना मान के θ/2 मानता हूं यहां पे, तो θ/2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? sin 2 θ/2 इज इक्वल टू 2 sin θ/2 cos θ/2। राइट? यस सर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये बन गया sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ/2 cos थीटा। sin थीटा जो होगा वो 2 sin θ/2 cos θ/2 होगा। अंडरस्टूड? कुशाग्र? मैंने एंगल यहाँ थीटा की बजाय Sir, θ/2। can you explain again? भाई जो फार्मूला है, ये फार्मूला में ड्राइव तो नहीं करूंगा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा होता है। ओके? मैं यहाँ एंगल जो ये थीटा है, ये इसकी जगह θ/2 लेता हूं, तो फार्मूला क्या बनेगा? ये बता सकते हो कोई? ये बनेगा sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ/2 cos θ/2। भाई 2 थीटा मीन्स ये थीटा जो है θ/2 लो यहां। अंडरस्टूड? मैंने θ/2 ले लिया उसको, तो sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos θ/2। राइट सर? मेलविन? यस सर। मेलविन अंडरस्टूड? आज फिर देखो उनने पीसी से अटेंड किया, बोला सर पूछेंगे, लफड़ा खत्म करो, पीसी से अटेंड करो, देयर शुड बी नो इंटरेक्शन। अब मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा और करता हूं। मैं यहां पे क्या करता हूं? आई मल्टीप्लाइड बाई 2, हाफ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं। सेम ही हुआ।
आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा। टू से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब मैं क्या करता हूं, ये हाफ इंटू आर स्क्वायर को तो इधर ले लेता हूं, इंटू 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस, इसको एक जगह लिखता हूं, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2, इसको एक साथ लिखता हूं। व्हाट इज 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2? कोई बता सकता है? दिस इज इक्वल टू साइन साइन थीटा, थीटा। and this formula, area of triangle will become half r square sin theta. This is a very great formula for finding the area of the triangle. In place of 2 sin theta upon 2 cos theta upon 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया? sin theta लिख दिया। या तो आप ये फार्मूला लगाइए, और अगर इस फार्मूले से एरिया नहीं निकले तो सबसे सिंपल फार्मूला है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा डिग्री मतलब ये किसमें है? जब थीटा एक्यूट एंगल हो, जब थीटा एंगल जो है 30 डिग्री का हो, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री में तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन जाएगा। 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, तो आप ये फार्मूला थीटा की वैल्यू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए, आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकल जाएगा। प्लीज नोट डाउन दिस फार्मूला, प्लीज नोट डाउन दिस फार्मूला। I have made these 3-4 formula for finding out the area of this triangle. और ध्यान रहे मैं ये किसके लिए कर रहा हूं? एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, क्योंकि सेक्टर का एरिया तो मैं निकाल दूंगा, माइनस जो ट्राइंगल का एरिया निकलेगा वो ट्राइंगल का एरिया किस किस वे में निकाल सकते हो आप? प्रगति समझ में आया? किस किस वे में निकाल सकते हो? यस सर। आया? यस सर। आप इसको घर पे पूरी अच्छी तरह लिखना, इस फार्मूले को नोट डाउन कर लो आपको, और फिर उसके बाद अगर समझ में नहीं आता प्लीज आस्क मी टुमारो इन द ऑनगोइंग क्लास। ओके, कल फिर इस Okay, sir. फार्मूले को डिस्कस करेंगे आप। आप पहले घर पे देखना सर ने कैसे निकाला है। ओके, यस सर। मनाली कुछ समझ में आया बेटा? यस सर।